مسجد کا کام ہے اور یہ مسجد کا وقت ہے. یہ جو سیکھنے کے لیے ان سے لے رہا ہے، لیکن یہ اس دعوت کے عنوان سے نہیں ہے، یہ سیکھنے سکھانے کے عنوان سے ہے. سیکھنے سکھانے کے عنوان سے ہے کہ تعلیم، فضائل کی تعلیم کے لیے وقت ہے، اور اس کے ساتھ اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس کو علماء سے کیا کر لے، معلوم کر لے، ان سے سیکھیں. اس کے لیے ہر ایک آدمی اپنے طور پر نظام بنا دے. نظام بنا، یعنی ہمارے ہاں تو جماعت کے اعتبار سے جو حلقہ ہے اجتماعی طور پر وہ تو تعلیم کا ہے، فضائل کی تعلیم کا ہے. لیکن اب یہ قرآن سیکھے، اپنے نماز ٹھیک کر لے، اپنے مسائل معلوم کر لے، یا جس شعبے میں بھی ہو اس کا علم لے. اس کے لیے بندہ اپنا نظام بنا دے، اپنا نظام بنا دے. تو گویا یہ جو دین تب آئے گا کہ جب ایک طرف یقین میں ترقی ہو دعوت کے ذریعے سے، دوسری طرف فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر ان اعمال کا شوق بڑھے، ان اعمال پر جو وعدے اس کا یقین بڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم لے، اس کا علم لے. تو اس کی طرف فضائل تو اچھا، یہ تو اجتماعی طور پر ہے. تعلیم کے حلقے میں یہ پوری جماعت بیٹھے، جیسے نکلنے کے زمانے میں پوری جماعت تعلیم میں بیٹھتی ہے، تو اس طرح یہ جو 10-15 ساتھی جو مسجد کی جماعت ہے، یہ پوری جماعت تعلیم میں شریک ہو. ان کے ساتھ اور لوگ جو ہم نے محنتیں کی ہے، انہوں نے ارادے کیے ہیں، ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا، یہ کام. لیکن ان میں سے کسی کا ناغہ نہ ہو کہ ہاں ہماری مسجد میں تو تعلیم ہو رہی ہے، لیکن کبھی 5 بیٹھتے ہیں، کبھی 7 بیٹھتے ہیں، کبھی 10 بیٹھتے ہیں، کبھی میں بیٹھتا ہوں، کبھی نہیں بیٹھتا ہوں. تو ایک کہ مسجد کی جماعت کا کام ہے کہ اجتماعی تعلیم میں شریک ہونا، اور یہ ان دونوں کتابوں سے پڑھا جائے. صرف فضائل اعمال سے نہیں بلکہ فضائل صدقات سے بھی پڑھا جائے، دونوں حصوں سے. اور پڑھنا مقام پر چونکہ تو بہتر یہ کہ ترتیب کے ساتھ ہو، مثلا فضائل نماز میں جو پہلے 2 حدیثیں پڑھ لی فائدے کے ساتھ، تو اگلے دن جو پڑھے وہ تیسری چوتھی حدیث پڑھے، اس کے بعد جو پڑھے تو وہ 5ویں 6ویں حدیث پڑھے، تاکہ یہ پورا رسالہ یہ پورے ہم سنیں اور اس کو یعنی پڑھیں اور سنیں. اس طرح یہ یعنی صرف 2-4 جگہ ہیں وہیں سے روز پڑھنا نہیں، پوری کتاب تسلسل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے. تو یہ تو اور محلے والوں کو اس تعلیم میں شریک کرنا، جیسے پہلے بات عرض کی تھی. اس کے ساتھ اپنے گھر کی تعلیم ہے، اپنے گھر کی تعلیم یہ بھی مسجد کے کام میں سے ہے. دونوں تعلیمیں. گھر میں ایک جماعت ہے 8-10 افراد کی، 8-10، اس میں مستورات بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، اور اس میں بچے بھی ہیں. اور جس یہ بات بار بار بیانات میں بھی سامنے آ رہی ہے، ابھی مذاکرہ میں بھی کچھ بات ہو گئی کہ ذمہ داری گھر کے بڑے کی ہے کہ اپنے بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں دین یعنی ان کو دین پر لانا اور ان کے لیے دینی ماحول مہیا کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ذمہ داری. اور گھر کا ہر ایک فرد وہ اس مبارک کام کو اپنا کام سمجھ کر زندگی گزارے. تو اس کے لیے ترتیب کیا ہے؟ اس کے لیے یہ کہ ایک وقت ایسا ہو جس میں پوری جماعت گھر کے شریک ہو، تعلیم میں کیا ہو؟ شریک ہو. اچھا، جب یہ تعلیم میں شریک ہے تو اس میں بھی وہی بات آ جائے گی. فضائل قرآن سن رہے ہیں تو قرآن کا شوق بڑھے، فضائل نماز سن رہے ہیں تو گھر کا ہر ایک فرد نمازی بنے، مستورات میں سے، بچوں میں سے. گھر کا ہر ایک فرد ذکر پر پڑ جائے، ذکر بھی کرے. تو گویا اس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو، اس گھر میں ذکر بھی ہو، اس گھر میں رات کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگنا بھی ہو، اس گھر میں یہ سیکھنے سکھانے کے بارے میں عرض کر لوں کہ جو اس کی ضرورت کی چیز ہے، ہر ایک مرد عورت پر جو قرآن سیکھنا فرض ہے، تو اس کا نظام بنا دے اپنے گھر میں. بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کا جو بالغ افراد ہیں، جو
वो सीख कर अपने बच्चों को सिखलाए, अपने मस्तूरात को सिखलाए। अगर ये नहीं है तो खुद इंतजाम कर ले कि मेरे बच्चे कुरान सीखे। कहां सीखे? कुरान सीखे तो कहां सीखे? तो अपने मस्जिद में कोई कारी है, मुअल्लिम है, कोई मकतब है, कोई, तो उसमें उनका राब्ता बना दे ताकि ये कुरान सीखे बगैर न रहे, कम से कम कुरान तो सीखे। तो इसका एहतमाम हो। बच्चे अभी कुरान सीखे। दीन सीखने के लिए जो मसाइल हैं तो मर्दों के जरिए से उलमा से पूछ कर मस्तूरात वो इल्म ले जिसकी जरूरत हो, जिसकी क्या हो जरूरत हो, तो वो मसाइल मर्दों के जरिए से पूछवाए जाए मुफ्ती हजरात से, और वो उनको बता दे कि मुफ्ती साहब ने ये कहा, मुफ्ती साहब ने ये कहा, मुफ्ती साहब ने ये कहा, ताकि इस घर में इस तालीम के जरिए से फजाइल कुरान की तालीम है तो घर का हर एक फर्द कुरान पढ़ना सीख ले। फजाइल जिक्र की तालीम है तो सबकी तस्बीहात पूरी हो रही हो। फजाइल रमजान की तालीम है तो घर का कोई फर्द बगैर रोजे के न रहे। फजाइल सदकात की तालीम है तो जिस पर ज़कात फर्ज है वो इस फरीजे को अदा करे। फजाइल हज की तालीम ताकि ये फरीजा अदा हो जाए। इस तरह जो भी आमाल है तो उन आमाल के फिजा बने। तो एक तरफ तो इन्हीं किताबों से घर में तालीम हो और इसके साथ साथ मुज़ाकरा हो 6 नंबर का वक्तन फवक्तन, ताकि जो भी मस्तूरात हैं हर एक 6 नंबर में बात कर सके, दावत दे सके। ये मुज़ाकरा सिर्फ याद करने के लिए नहीं होता बल्कि इन सिफात का फिक्र पैदा हो कि ईमान का, नमाज का, इन अमाल के हमारे अंदर क्या हो, फिक्र हो और इसमें हम आगे बढ़े। तो उसके वक्तन 6 नंबरों का मुज़ाकरा है और इसके साथ यानी अपने घर में तालीम है और मसाइल उलमा के जरिए से, मर्दों के जरिए से मालूम करके वो अपने घर वालों को बताना, और घर में हर काम सुन्नत के मुताबिक हो। ये सब पूरे दीन के ज़िम्मन में आ जाता है। खाना सुन्नत के मुताबिक, सोना सुन्नत के मुताबिक, इस तरह लिबास सुन्नत के मुताबिक, शक्ल, लेकिन एक एक चीज को गिनना, ये तो बहुत सारे हैं। ये जो 6 नंबर है इसके जरिए से इस्तेदाद पैदा हो जाते हैं पूरे दीन पर चलने का। तो दीन का ताल्लुक सिर्फ नमाज के साथ नहीं है, दीन का ताल्लुक अपने इन सब मामलात, मुआशरात सब के साथ है, लेकिन वो तब जिंदगियों में आएगा मर्द और औरत के जब ये खूबियां वजूद में आ जाए। इसलिए जोर हो इन्हीं अमाल पर, इन्हीं अमाल के जरिए से बाकी जिंदगी उसमें वजूद में आ जाती है। तो एक तो मस्जिद की पूरी जमात, मशवरा के लिए वक्त, रोजाना मुलाकातों के जरिए से ये तकाजे पूरा करना और उसके साथ ये अपने तालीम का एहतमाम करना। अब जब रोजाना बंदा मशवरा करे, रोजाना दावत दे, रोजाना तालीम करे और रोजाना जिक्र करे, रोजाना इबादत है और इसके साथ नवाफिल का एहतमाम करे और इसके साथ ये अपने कारोबार में कमाना और खर्च ये शरीयत के मुताबिक हो, तो इसके दिल के ताल्लुक अल्लाह के साथ बढ़ता चला जाएगा। अब हफ्ते में एक दिन उमूमी गश्त है, एक दिन अपने मोहल्ले में उमूमी गश्त है। ये गश्त इज्तिमाई है, ये 2-2, 3-3 की जोड़ियां नहीं है, बल्कि मस्जिद की जमात के एतबार से, उन्वान से ये हफ्ते में एक दफा है। वजह क्या है कि लोगों को जमा करके बात करना ये रोजाना नहीं होता है, वरना मलल पैदा हो जाएगा, उकताहट पैदा हो जाएगी। जो हमारे हजरात ने कुरान और सुन्नत को देखकर उसका इस्तेमाल किया है, तो वो क्या है कि रोजाना दावत की बात घर घर तो रोजाना है वहां पर, लेकिन लोगों को यानी मस्जिद में इज्तिमाई तौर पर बात करना ये हफ्ते में कितनी दफा है? हफ्ते में एक दफा है। इसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इसमें 8-10 साथी हो, यानी जमात मजबूत हो और ये घर घर पर मुलाकातें करें, लेकिन यहां मुतकल्लिम मुख्तसर बात करके वहां बैठकर तफसील से बात नहीं करती जैसे रोजाना की मुलाकातों में है।
مختصر بات کر کے ان سب کو مسجد میں لانے کی کوشش کرنی ہے کہ سب مسجد میں آ جائے. اب مسجد میں جب وہ آئے تو ان کے استقبال کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے, ذکر دعا کے لیے بھی آدمی مقرر ہو, بیٹھ کر بات کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے, بیان کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے. تو اس محلے میں گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا. اجتماعی جو بات ہے, ہماری کوشش اس بات کی ہے کہ اجتماعی باتیں مسجد میں ہو, مسجد کے ماحول میں ہو. یا مثلا کسی مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے بعض وجوہات سے, تو بیٹھک میں ہے تو وہ بھی ایک قسم کی مسجد کے حکم میں آتا ہے کام کے اعتبار سے, تو اس ماحول میں ہو, اسی ماحول میں ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو اجتماعی بات ہے اس کے لیے پہلے گشت ہو, اس میں پہلے کیا ہو, گشت ہو. تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس نماز کے بعد لوگ گھروں پر مل سکتے ہیں. ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ کس نماز کے بعد لوگ زیادہ بیٹھ سکتے ہیں, یعنی نماز میں تعداد لوگوں کی زیادہ ہے نہیں. ہم دیکھیں گے اس کو مثلا عصر کی نماز کے بعد لوگ مل سکتے ہیں تو ہمارا گشت عصر کے بعد ہے اور بیان مغرب کے بعد ہے. اور اگر ہمارا دیکھا کہ وہ ماحول ایسا ہے کہ اس میں عصر کے بعد گھر پر لوگ نہیں مل سکتے ہیں, جس گھر پر بھی جاؤ کہتے نہیں ہے ابھی نہیں ہے, گھر پر نہیں ہے, گھر پر نہیں ہے, تو مغرب کے بعد گشت کر لے اور عشاء کے بعد بیان کر لے. اب یہ جو ہمارا گشت ہے یہ ہمارا ہفتے میں کتنی دفعہ ہے, ایک دفعہ ہے. لیکن اس کے لیے یہ جو ایک دفعہ کا گشت ہے یہ گشت پورے محلے کے لیے ہے, یہ ایک گلی کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ مسجد کے ساتھ جتنے گلیاں ہیں ان سب کے لیے ہے کہ ان سب کو جمع کرنا. اب یہ تب ہو سکے گا کہ جب ہماری جماعتیں ایک نہ بنے, بلکہ ہماری جماعتیں کتنی بن جائیں, 3 جماعتیں بنے, 4 جماعتیں بنے. اس گلی میں ایک جماعت گشت کر لے, دوسری گلی میں دوسری جماعت گشت کر لے, تیسری گلی میں تیسری جماعت گشت کرے, تاکہ پورے محلے میں ہماری یہ ملاقاتیں ہفتے میں ایک دفعہ ہو. وہ تو 15 دن مہینے میں جو تفصیلی بات ان سے گھر پر ہوتی ہے, اور یہ صرف گھر پر حاضری دے کر مختصر بات کر کے ان کو مسجد میں جمع کرنے کی کوشش. تو اس میں ہماری یہ کوشش ہو کہ پورے محلے میں ہفتے میں ایک دفعہ. اب اگر ہم نے ایسا کیا کہ ایک دن ہم نے گشت کر لیا ایک گلی میں, دوسرے ہفتے ہم نے پوچھ لیا کہ اب کون سی گلی کی باری ہے, تیسرے ہفتے میں ہم نے, تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے میں ہمیں, اور بعض وقت تو مسجد کے ساتھ گھر بہت سارے ہوتے ہیں, تو ہمارا عمومی گشت تو ہفتے میں ایک دفعہ ہو گیا محلے میں, لیکن محلے والوں پر ایک دفعہ ہو گیا ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ ہوا. اور ہونا کیا چاہیے, تو اس کے لیے کیا شکل ہو کہ بس یہ ایک ہی جماعت ہی رہے, نہیں جماعتیں کیا بنا دیں. زیادہ تب ہوگا کہ جب ہمارے سب ساتھی گشت میں کیا ہو, گشت میں شریک ہو. جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب گشت میں شریک ہو, اور جنہوں نے وعدے کیے تھے, ارادے کیے تھے گشت سے پہلے ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو جاؤ ایک دن پہلے, اسی دن, تاکہ ان کو ہم اپنے گشت میں اپنے ساتھ شریک کر لیں اپنے ساتھ. ورنہ گشت تو ہو جائے گا, 2 4 5 بندے کہتے ہیں الحمدللہ پابندی کے ساتھ گشت ہو رہا ہے, لیکن ہر ایک کا پابندی کے ساتھ گشت ہو رہا ہے. یہ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہیں, یہ نہیں ہے کہ تبلیغ میں اس کا وقت لگا ہے بس. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جماعت میں ایسے ساتھی زیادہ ہو جو اصول کے ساتھ گشت کر سکتے ہوں, کیونکہ بعض کو تو مسجد میں بات کرنے کے سننے کے لیے بٹھا دیں, لیکن پورے محلے کے لوگ ہمارے ساتھ اس میں کیا ہو, شرکت کریں. تو اس کے لیے ایک درخواست ہے کہ روزانہ اپنے محلے ہفتے میں ایک دفعہ ہمارا عمومی گشت ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. گشت کا وقت ہو یہ پہلے سے پتا ہوتا ہے, تو جیسے میں نے تعلیم کے بارے میں بتا دیا, روزانہ ملاقاتوں کے بارے میں عرض کیا, مشورے کے بارے میں عرض کیا. اس طرح یہاں بھی اگر گشت کے وقت میں کوئی کام پڑ گیا تو اس وقت گشت کو چھوڑ دینا چاہیے یا کام کو مؤخر کرنا ہے, گھر کے تقاضے کو مؤخر کرنا ہے, کاروبار کے تقاضے کو مؤخر کرنا ہے, لیکن گشت کو مؤخر نہیں کرنا ہے. یہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا ثواب سے انکار نہیں ہے, لیکن کام وہ ہے
जो वक्त पर हो और जो तरतीब हो उस तरतीब पर किया जाए तो उसी का नाम काम होता है, उसी का नाम काम होता है। और जब वक्त पर ना हो, तरतीब के साथ ना हो तो उसका नाम काम नहीं होता है। वरना आप दुनिया में देखें, कभी दुकान में चला गया, कभी नहीं गया, कभी मुलाजमत में गया, कभी नहीं गया, तो इसको कोई काम कहा जाता है? तो जिस तरह दुनिया के मामलों में ये काम नहीं समझा जाता, तो दीन के मामले में हम इसी को काम समझे कि ये काम है। इसलिए भाइयों, दरखास्त है अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि बहुत बड़ी नेमत है, उसके लिए हम अपने तकाज़ों को मौखर करें। अच्छा, इसमें एक बात और करनी है, जब ये गश्त हमने कर लिया तो पूरा हफ्ता हमने मेहनत की है। हम हर गश्त से चिल्ला तीन चिल्ले की जमात निकालना चाहते हैं, हर गश्त से चिल्ला तीन चिल्ले की जमात निकालना चाहते हैं और इसी मस्जिद से निकालना चाहते हैं। जैसे कोई जमात किसी मस्जिद में जाने के बाद तश्कील हो जाए तो 3 दिन वहां पर मेहनत करती है, तो उसी मस्जिद से चिल्ला तीन चिल्ले की जमात निकालती है, नहीं निकालती? निकले या न निकले ये अलग बात है, लेकिन जमात के सामने तकाजा क्या होता है कि पूरे मस्जिदों से लोगों को जमा करके चिल्ला तीन चिल्ले की जमात तैयार कर ली, या इसी मस्जिद से मेहनत करती है, एक दिन में तैयार न हो जाए, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में जमात तैयार न भी हो जाए तो एक नदामत होती है या नहीं होती? और ये अंदर एक जज्बा बनता है कि दूसरे मस्जिद में जाकर मैं हमने जमात मेहनत करनी है, जमात तैयार करनी है, नका दो, इस जज्बे के साथ दूसरे मस्जिद में नदामत के साथ। तो पूरा हफ्ता हमने काम किया, जबकि इस मस्जिद में 15 पुराने हैं, वो ये तो मैंने 15-10 से शुरू कर दिया, किसी जगह 20 है, किसी जगह 40 है, किसी जगह 50 है, किसी जगह 100 है, किसी जगह 200, 300 तक है। लेकिन अगर देख लिया जाए कि हर मस्जिद, हर गश्त से चिल्ला तीन चिल्ले की जमात निकल जाती है तो नहीं निकलती, अफराद निकलते हैं। तो हमारे सामने क्या हो कि चिल्ला तीन चिल्ले की जमात निकालनी है, पूरा हफ्ता इसी नियत से हमने मेहनत करनी है। अब जमात नहीं निकली तो एक हम मुतमईन हो गए और एक ये कि हम फिर आपस में बैठ जाए कि किस चीज में कमी है। दीन के मिटना जबरदस्ती अपने आप को बंदा फिक्रमंद करे कि हर जगह अल्लाह के अहकामात मिटे हुए हैं, सुन्नत जिंदगी मिटी हुई है, उसकी वजह से जो नहूसत है और जो मुसीबतें और जो परेशानियां हैं उसके दूर होने का जरिया, दुनिया और आखिरत में इन मुसीबतों से बचने का जरिया दीन के अलावा और कुछ हो सकता है? और दीन की मेहनत अगर नहीं है तो दीन जिंदा हो जाएगा। इसलिए अपने को देखे, बाहर को न देखे कि लोग ऐसे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं बैठ रहे हैं, लोग बात नहीं सुन रहे हैं। लोगों से कहना तो बतौर तरगीब है हर एक सिफत, और अपनी जात के एतबार से करना बतौर तकलीफ है, इसका मैं मुकल्लफ हूं, इसका मेरे से पूछा जाएगा। लेकिन दूसरे के बारे में क्या है? तरगीब है दूसरे के बारे में। तो अपनी जात के एतबार से करना ये हमारी जरूरत और हमारी हाजत है। इसलिए अपने कमियों को देखे कि हमारे तस्बीहात में, रात के उठने में, अल्लाह से मांगने में, या अपने कारोबार में, या खर्च करने में, या अपने दूसरे जो अमाल है उसमें कमी हुई है या नहीं हुई। तो अगर गुनाह का काम हो रहा है और सुन्नत के खिलाफ काम हो रहा है तो दीन की मेहनत इसलिए ताकि हमारे अंदर सुन्नतें जिंदा हो जाए, हमारे अंदर दीन जिंदा हो जाए। ये मेहनत दीन के इहया के लिए है, दीन के इहया के लिए है। तो अपने देखे उसमें जो भी कमी है, आप उसमें ताल्लुक, मोहब्बत, जो कमी है उस कमी को दूर कर दिया जाए और आइंदा हफ्ता पूरी मेहनत करके जमात निकालने की कोशिश की जाए। तो चलो दूसरा हफ्ता न हो, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, महीने में एक जमात निकल जाएगी, 2 महीने में जमात निकल जाएगी। लेकिन अगर इसका फिक्र ना हो तो फिर साल गुजर जाएगा और जमात का निकलना आसान नहीं होगा बल्कि मुश्किल होगा। तो इसलिए सिर्फ गश्त बराए गश्त नहीं है बल्कि दकत जमातें निकालना, इसकी कोशिश हो। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अगली बात यह है कि इस डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये बात न भूल जाए कि ये जो तुलबा और असातिज़ा हैं स्कूल और कॉलेज के, तो एक जमात उनके लिए बना दे, वो वहां जाकर उनके साथ पूरी बात करे। ये मुख्तसर बात नहीं जैसे मुतकल्लिम बात करके लाता है, उनके घर पर बैठकर उनसे पूरी बात हो, लेकिन इतनी लंबी भी ना हो कि नमाज भी चली जाए और बयान में भी नहीं,
उसको अपने साथ मस्जिद में लेकर आए ताकि वो नमाज में भी शरीक हो और मस्जिद के उसमें बयान वगैरह में भी क्या हो, शरीक हो जाए। तो इस तरह हम पूरे मोहल्ले को तरतीब दें। एक बात और अर्ज करनी है, वो ये कि इन आमाल के लिए मशवरा कब करना है। ये जो मस्जिद की जमात गश्त करेगी तो बाज वक़्त बारह में वो अर्ज करने कुछ जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, क्या हो रहा है वो तो सबको पता है, लेकिन मुज़ाकरा तो इसका होता है कि होना क्या चाहिए। तो होना ये चाहिए कि असर के बाद गश्त है और मगरिब के बाद बयान है, तो असर से पहले इस पूरी जमात को जमा होना चाहिए और जमा होकर ये अपने आमाल को तकसीम करे, अपने अमाल को मशवरा करे और अपने अमाल को तकसीम करे। इस तरह वो पूरी जमात है अमल से पहले और पूरी जमात ने आपस में मशवरा करके गश्त की तरतीब बना दी। तो ये तो अपने हफ्ते में एक दफा मस्जिद के वो गश्त है, लेकिन ये गश्त जिसे मैंने पहले अर्ज किया, जमातें ज्यादा हो, दिन तो एक है, ये उमूमी गश्त है, लेकिन एक जमात के बजाय दो जमातें, दो के बजाय फिर तीन हो जाए। अब हर साल हम कारगुजारी सुनाते हैं, तो हल्कों में भी सुनाते हैं और यहां भी सुनाते हैं, तो उससे जरा इतनी बात अगर आ जाए आइंदा साल या हल्कों में कि पिछले साल मसलन हमारे बैरूनी गश्त मस्जिद, अपने मस्जिद में जो जमातें बनती थी उमूमी गश्त, तो 2 जमातें बन जाती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 जमातें बनती हैं, अब 5 जमातें बन जाती हैं, 6 जमातें बन जाती हैं, उस मस्जिद के साथ जितने घर है उनके घर। तो ये एक तरक्की है। ये क्या है? एक तरक्की है कि काम के शक्लों में भी बंदा क्या है, आगे बढ़े। और ये एक दलील है इस बात की कि और लोग भी इनके साथ शरीक हो रहे हैं। इसलिए ये 4-5 बंदों का काम नहीं है, ये हर मुसलमान का बहैसियत मुसलमान होने के जिम्मेदारी है और काम है। इसके साथ एक और बात अर्ज करनी वो ये कि ये जो हमारा दूसरा गश्त है ये भी हफ्ते में है, लेकिन एक गश्त है मुकाम पर और एक गश्त है बैरूनी। ये जो बैरूनी गश्त है तो इसमें वसी मशवरे की जमात इसको देखे कि हमारे करीब कितनी मस्जिदें हैं जिसमें जमात बनी हुई है, कितनी मस्जिदें ऐसी है जिसमें जमात बनी हुई नहीं है, अच्छा, या 2-4 बंदे तो थे या है भी, लेकिन अब वहां कोई काम नहीं हो रहा है, मस्जिद के काम में से कोई आमद नहीं हो रहा है, काम बहुत कमजोर है। तो अब हमारे जो दूसरा गश्त है वो जहां काम नहीं है वहां जमात बनाना काम है, और जहां कुछ कमजोर है उनको तक़वियत देना काम है ताकि वो काम पर पड़ जाए। अब ऐसी जगहों को तलाश करना और ऐसी मस्जिदों में अपना बैरूनी गश्त रखना, अगर ये होगा अपने हफ्तावारी मशवरे से ताकि सबके सामने हो कि कौन सी मस्जिद में किन का जरूरत, इनकी भी अपनी राय होगी, इनकी भी अपने फिलहाल मस्जिद में हमारी जमात दूसरा गश्त शुरू कर ले। अब दरखास्त यह है कि जिस तरह जमात वहां पर कैसी बनेगी, तो जमात वहां पर बनेगी रोजाना मेहनत से, जिस तरह अपने मस्जिद की जमात रोजाना मेहनत करती है अपने मोहल्ले में, तो अगर साथी ज्यादा हैं, 10-15 साथी हैं, तो 2 साथी 4 साथी, उनको रोजाना की जो मेहनत है 2.5 घंटे या रोजाना घर घर की मुलाकात हो, उसमें उनको उस मोहल्ले में भेज दिया जाए। अब बज़ाहिर ये दूसरे मोहल्ले में काम कर रहा है, लेकिन ये हमारी मस्जिद की जमात का काम है। अगर ये दूसरी मस्जिद में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हमारी मस्जिद की जमात का काम है कि वहां 2 साथियों की जमात भेज दें, 4 साथियों की जमात भेज दें, रोजाना वहां घर घर पर मुलाकातें, जैसे पहले बात अर्ज की, ताकि लोगों को तैयार कर ले अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए और मस्जिद में काम के लिए, और उनको बता दिया जाए कि हमारे फिलहाल दिन यहाँ पर उमूमी गश्त होता है, ये अमाल होते हैं, इसमें आप हज़रात शिरकत कर लिया करें।
रोजाना हो सके बहुत अच्छा, वरना हफ्ते में 2-3 दिन हो जाए। ये भी ना हो सके तो जिस दिन गश्त है उससे एक दिन पहले तो जरूर वहां पर मुलाकातें हो जाएं, ताकि लोगों से बातें भी की जाए, उनसे इरादे भी लिए जाए। एक फितरी बात है, जिससे बात की जाती है उसको फिर बात याद रहती है कि कल वो साथी आए थे, उन्होंने ये वक्त मेरे से मांगा है, मैंने तो उनसे कहा है कि मैं इंशाअल्लाह शिरकत करूंगा, अब ये वक्त मैं किसी और जगह नहीं दे सकता। यानी पहले से वो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होता है। तो इसलिए कोशिश की जाए कि वहां इन 2-2.5 घंटे में जो रोजाना का काम है, इसमें वहां पर जाकर वहां मुलाकातें हों, वहां मुलाकातें हों। अच्छा, मुलाकातें हों। फिर जब उमूमी गश्त है, जिस दिन गश्त है उस दिन क्या किया जाए? जो ये मस्जिद की जमात है, जिसने जाना है, तो एक सूरत है ना कि कोई असर में पहुंच गया, कोई मगरिब में पहुंच गया, कोई इशा में पहुंच गया वहां, और एक ये कि पूरी जमात जिस तरह अपने मस्जिद के मोहल्ले का गश्ता और ये साथी जमा हुए थे मस्जिद में, तो इस तरह ये पूरी जमात मस्जिद में जमा हो जाए। जमा होने के बाद ये जमात की शक्ल में वहां पर जाए, उस दूसरे मस्जिद में जमात की शक्ल में जाए। वहां पर जाकर उस गश्त से पहले वहां जिन्होंने इरादे किए थे, या मसलन जिन साथियों का औकात लगे हुए हैं 1-2 साथी, लेकिन वो पूरा काम नहीं कर सकते अपने वहां माहौल न होने की वजह से, तो उनके साथ मुलाकातें करें, तो उनको अपने साथ मशवरे में शरीक किया जाए। अब ये जो मशवरा है, ये वहां जो साथी तैयार है उनको भी साथ शरीक कर लिया और खुद भी, और अब वहां की तरतीब बना दिया जाए कि यहां के अमाल की तरतीब बने। तो यहां भी एक जमात है, तो कोशिश की जाए कि यहां जमात बने। अब जमात बनने के लिए आमतौर पर जो बताया जाता है कि 2 महीने वहां पर काम करें, 8 गश्तें, तकरीबन 8 गश्तें, तो 1 महीने में कितने गश्तें होती हैं? 4, तो तकरीबन 7-8 गश्तें वहां पर मेहनत करें, और उसमें कोशिश की जाए कि यहां से जमात तैयार हो जाए, 7 चिल्ले के लिए, 3 चिल्ले के लिए, वरना कम से कम 3 दिन की जमात तो तैयार हो जाए। उस जमात को फिर ये मस्जिद की जमात अपने साथ ले जाए और उन पर आगे मेहनत कर ले, ताकि इस काम के साथ मुनासिबत पैदा हो जाए। और अपने साथ जो भी तैयार हो रहे हैं, तो अब वहां जो हमारे साथी उस मोहल्ले में काम करने जाते हैं, तो इन साथियों को अपने साथ शरीक करें, ताकि वो भी रोजाना मुलाकातों में क्या हो, शरीक हो। इसलिए दरखास्त ये है कि वहां वालों को यह कह देना कि आप यहां काम नहीं है तो आप हमारे यहां जुड़े, आप हमारे यहां जुड़े, आपके यहां काम नहीं है, तो इससे वहां काम हो उठ जाएगा। और एक हम उनकी मुआवनत करें, उनके लिए जमात बना दें, और जमात इसी तरह बना दें, रोजाना मुलाकातें या गश्त से पहले 1 दिन मुलाकातें, कोशिश हो तो, ताकि वहां जमात बने। अब हमारी मस्जिद की जमात एक जगह बिरूनी गश्त कर रही है, एक जगह बिरूनी, लेकिन जिस तरह अपने मोहल्ले में 2 जमातें बनती हैं, 3 जमातें बनी, 4 जमातें बनी, 5 जमातें बनी, इस तरह बिरूनी गश्त के लिए भी जमातें कितनी बने? काम जब आगे बढ़े तो 2 जमातें बन जाए, 3 जमातें बन जाए, 4 जमातें बन जाए, ये सब बिरूनी गश्त तो है 1 दिन में एक, लेकिन मुख्तलिफ मस्जिदों में इस मस्जिद की जमात का गश्त होगा। जिस मस्जिद में साथी ज्यादा है और उनकी 8-8, 10-10 साथियों की जमातें बन सकती हैं, तो अब दूसरी मस्जिद में, तीसरी मस्जिद में, इस तरह ये एक मस्जिद की जमात कितनी मस्जिदों में काम उठा सकते हैं, बशर्ते कि इस मस्जिद में क्या हो, मस्जिद में काम हो। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि बाज वक्त बाज जगहों में, बस्तियों में, वो कहते काम तो है नहीं, तो एक जगह से 2 ले लेते हैं, दूसरी जगह से 1-2 ले लेते हैं, तीसरी जगह से 1-2 ले लेते हैं, तो मुख्तलिफ जगहों से 3, 4, 5, 7, 8 की जमात बन जाती है। कहते अब ये पूरे शहर के मस्जिदों में फिरेगी और वहां काम उठाएगी। भाई हमारे यहां मस्जिदों में काम उठाने के लिए जो रास्ता है पहले से चला आ रहा है, वो अपने मस्जिद का दूसरा गश्त है, अपने मस्जिद का दूसरा गश्त है। अब जितनी मस्जिदों में आप काम करें जमातें, और
अपने रोजाना की मेहनत से अगर साथी ज्यादा है आपके, हर मस्जिद में आप 2-2 साथी भेजते तो बजाय ये दूसरे महल्लों में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये आपके मस्जिद की जमात का काम है। वो आप मस्जिद की जमात मेहनत कर रही है और दूसरे मस्जिदों में काम उठा रहा है। तो इस तरह कोशिश की जाए ताकि हर मस्जिद में जमात बने और काम शुरू हो जाए। तो गोया ये पूरी जमात मशवरे में भी शरीक हो, ये पूरी जमात ये रोजाना की मुलाकातों की तरतीब हो, ये पूरी जमात तालीम में भी शरीक हो और इस पूरी जमात के घर घर में तालीम भी हो और साथ साथ मशवरे मुकामी गश्त भी हो, बैरूनी गश्त भी हो और इसका हर एक फर्द कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा हो, जिक्र भी कर रहा हो। ये सब मस्जिद में है, जिक्र कर रहा है मस्जिद में, कुरान पाक पढ़ रहा है मस्जिद में, नफलों का एहतमाम कर रहा है मस्जिद में, दुआ मांग रहा है मस्जिद में, रात को उठकर अल्लाह पाक से मांग रहा है किसमें? मस्जिद में। अच्छा, और जमातें जमा हो रही हैं बैरूनी गश्त के लिए मस्जिद में, फिर मस्जिद से दूसरे मस्जिद अपने मुकामी गश्त पर जमात जमा हो रही है मस्जिद में, वहां पर मशवरा हो रहा है। तो ये हमारे सब काम मस्जिद के साथ मरबूत है और ये मस्जिद के लिए वक्त है और उसी में इस वक्त को सर्व करना है और वक्त को आगे बढ़ाना है इस मुख्तलिफ शक्लों के लिए। इसके साथ एक बात और करनी है, वो है कि सेरोजा महीने की। तो अब ये जो रोजाना मशवरा होता है, इन साथियों के जो 2-2 साथी या 3-3 साथियों की जोड़ियां बनी हैं जिन्होंने रोजाना मुलाकातें कर दी हैं, तो इन्हीं 3 साथियों ने ये अपने हफ्ते तकसीम कर लें। मसलन ये 3 साथी एक हफ्ता में, ये 3 साथी दूसरे हफ्ते में, ये 3 साथी तीसरे हफ्ते में, ये 3 साथी चौथे हफ्ते में। और अब पूरा महीना इन्होंने 27 दिन काम करना है अपने साथ जमात तैयार करने के लिए। जैसे चिल्ले 3 चिल्ले के तकाजा चल रहा है, तो कम से कम सिरोजे की जमातें तो काम पर वो जमेगा जो सिर्फ ये नहीं कि उसका सिरोजा लग रहा है, बल्कि वो सिरोजा के लिए जमात तैयार करने में लगा रहता है। सिर्फ ये नहीं कि इसका सालाना चिल्ला लग जाता है, बल्कि ये सालाना चिल्ले के लिए जमात तैयार करने में लगा रहता है अपने मुकाम पर और उनके वसूली। तो मुकाम पर ऐसी मेहनत करके अपने साथ साथी तैयार कर ले। तो ये 3 साथी पुराने होंगे और इनके साथ 7-8 साथी नए। दूसरे हफ्ते में 3 साथी पुराने, 7-8 साथी नए। तीसरे हफ्ते में इस तरह निजाम बना दिया जाए। वक्त मुकर्रर पर, ये सबके वक्त मुकर्रर है। मशरे का वक्त मुकर्रर है जो भी आसानी से हो, तालीम का वक्त मुकर्रर है, रोजाना की मेहनत का वक्त मुकर्रर, क्योंकि इज्तिमाई काम है। मस्जिद के ये मुकामी गश्त का वक्त मुकर्रर है, बैरूनी गश्त का वक्त मुकर्रर है और साथ साथ से रोजे का वक्त मुतय्यन हो। ये बात के पहले हफ्ते में से रोजा लगा लिया बहुत अच्छा, नहीं लगा लिया तो दूसरे हफ्ते में, नहीं लगा लिया तो तीसरे हफ्ते में, वरना चौथे हफ्ते में। अच्छा, अब हम खुद देख ले इस बात को। मसलन हफ्ता हमने पहले एक महीने में पहले हफ्ते में से रोजा लगा लिया। अब जब दूसरा महीना आया, मैंने ये कहा कि मैं अभी इस हफ्ते में तैयार तो नहीं हूं, महीने में से रोजा है, तो इस महीने का तो दूसरा हफ्ता भी है, तो दूसरे हफ्ते में चले जाऊंगा। दूसरे हफ्ते में भी मैं नहीं गया। अच्छा, तीसरा हफ्ता भी तो है, तो मैं तीसरे हफ्ते में चला गया मिसाल के तौर पर। तो ये महीने में से रोजा हो गया या 55 दिन के बाद से रोजा हो गया? 60 दिन के बाद हो गया। महीना जब वापस आया तो महीना तो वो गुजर गया जो भी, उसके साथ ये 15-20 दिन ज्यादा हुए या नहीं हुए? तो ये महीने में से रोजा है। महीने में क्या है? ये तब हो सकता है कि जब इंसान इसके लिए वक्त क्या कर ले, मुकर्रर कर ले। अब कुर्बानी तब वजूद में आएगी जब वक्त मुकर्रर हो। जब वक्त फारिग हूं तो इस हफ्ते में ठीक है, वरना दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, ये भी एक शक्ल है। और एक है जो वक्त मैंने मुकर्रर कर लिया है, उस वक्त अगर घर का तकाजा है, उस वक्त अगर कारोबार का तकाजा है, जैसे मशरे में, तालीम में, रोजाना की मेहनत में, गश्तों में, तो उस वक्त उसको क्या करना है, मुअख्खर करना है। तो ये कुर्बानी बनेगी, ये निकलना कुर्बानी के साथ होगा। और अगर सिरोजे को मुअख्खर न किया जाए, सिरोजे को मुअख्खर न किया जाए, इस तरह कुर्बानी के साथ
से रोजा लगे। अच्छा, जिन साथियों को हम लेकर गए, देखें कि कहां जाना है, तो करीब बस्तियों में, जिन बस्तियों में जमातें बनी हुई नहीं है, जिन जगह काम नहीं है, तो काम उठाने के लिए, जमातें बनाने के लिए ये अपने उसका सिरोजा है, महीने का सिरोजा है। अब एक तरफ ये साथी जो हमारे साथ हैं, 8-10 साथी इसी मस्जिद के हैं, तो ये भी काम वाले बने। तो काम वाला बंदा तब बनता है जब काम दिया जाए, जब काम। तो इन पुरानों का काम क्या होगा? पुरानों का काम ये कि इनकी खिदमत करें, इनके लिए खाना पकाएं, इनको खुश रखें, काम इनसे लें, काम इनसे लें। और उसका तरीका आसान कि उस काम का मुज़ाकरा हो, मुख्तसर तौर पर तालीम का, अब किसी को तालीम का तो दे दें, तरगीब गश के मुज़ाकरा हो जाए, किसी के जिम्मे लग जाए, उसके साथ कोई मुज़ाकरा हो जाए, दो की जोड़ियां बना दिया जाए, एक ने पहला नंबर सीख लिया, दूसरे ने दूसरा, अब ये जिसने सीखा है उसको सिखला दे, उसको सिखला दे। इस तरह जब काम हम देंगे तो काम वाले बनेंगे और अपने मुकाम पर भी काम कर सकेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर ये हो कि तो नहीं आए, ये क्या कर सकेंगे, और वो देखते रहते हैं और हम करते रहते हैं, तो इससे मुकाम पर वो हमारे साथ नहीं जुड़ सकेंगे। इसलिए कोशिश ये हो, मौका महल के एतबार से, लेकिन इन्हीं साथियों से काम लिया जाए। काम क्या? एक तो अमाल, एक इन्हीं के जरिए से जमात तैयार कर लिया जाए, चिल्ला तीन चिल्ले की जमात। चिल्ला जैसे रोजा तो मुकामी काम का हिस्सा है, कोशिश इस बात की हो कि चिल्ला तीन चिल्ले की जमातें इनके जरिए से तैयार किया जाए। रोजे की भी नफी नहीं है, लेकिन ये नकद जमात तैयार करने के लिए कोशिश करें। मस्जिद का काम जिस सतह पर है उसमें आगे तरक्की हो जाए, उसके बारे में उस मस्जिद की जमात के साथ जो बातचीत हो उसमें भी ये शरीक हो और कोशिश कर ले कि ये भी इसका तस्करा कर ले और इसकी बात कर ले। अच्छा, अब जमात तैयार करने में लगे, जमात तैयार हो जाए, मसलन दूसरे दिन तीसरे दिन, तो उस जमात को हिदायत देकर रवाना कर लिया जाए, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में निकाल दिया जाए। उसमें अगर कोई पुराना नहीं है तो हमारी मस्जिद की जमात के साथ कोई दो साथी कुर्बानी करके उस जमात को लेकर चले, ताकि उस जमात से काम ले। फिर भी कोई ऐसी सूरत नहीं बन सकती तो फिर उस जमात को अपने मोहल्ले की मस्जिद में डाल दें, ताकि हम उनकी नुसरत भी करें, उन पर मेहनत भी करें, वरना अपने किसी भी मस्जिद में बस्ती के ताकि उन पर मेहनत हम कर सकें। तो इस रोजे की जमातों के जरिए से जमात निकालना, जमातें भी निकाले, जमातें भी बनाए। एक बात और अर्ज करनी है, ये जो जमात हमारे साथ है 3 दिन, तो इसको किसी भी मौका पर, एक तो उमूमी बयानात में भी वो इरादे लिखवाते हैं अपनी जमात के साथी, क्योंकि बात सुनते हैं मस्जिद के माहौल में, लेकिन एक वक्त ऐसा हो कि इनसे जरा तरगीबी बात हो जाए, तरगीबी बात होकर इनसे इरादे करा लिए जाए। चिल्ले 4 महीने के हो सकते हैं, नकद इनमें से कोई तैयार हो जाए।